Hey guys, once again, welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Now, as you can see from the thumbnail, it says that I have a news to share with you all. Next will be held from the coming year for students of homeopathy as well. There was a previous update regarding this, but now जो commission है homeopathy की, they have confirmed that next will be held from next year. What will be the upcoming updates? इसके बारे में we'll be discussing later. Till then, if you want to get upcoming updates regarding examination, its syllabus, do not forget to follow Inside Organon and hit the bell icon. Let's get started. So friends, this is the exact bulletin or all the information related to national exit test you can see on the screen. So first of all, here it has been mentioned that a common national exit test for homeopathy will be conducted by commission through designated authority. जो भी designated authority है homeopathy की जो exam conduct कराती है, and this exam will be held during the internship period. This you need to keep in mind कि ऐसा नहीं है इंटर्नशिप खत्म हो जाने के बाद एग्जाम देना है, बट कितनी इंटर्नशिप खत्म हो जाने के बाद और पीरियड में, दैट आई विल बी टेलिंग यू लेटर इन दिस वीडियो. The national exit test shall be held for granting license. जो आप मेडिकल प्रैक्टिशनर जो लोग क्लिनिक ओपन करना चाहते हैं, अब वो बिना नेशनल एग्जिट टेस्ट के क्लिनिक ओपन नहीं कर सकते, बिकॉज जो स्टेट रजिस्टर में या फिर नेशनल रजिस्ट्रेशन होता है मेडिकल प्रैक्टिशनर का, उसका लाइसेंस को नहीं मिलेगा. दैट इज RMPs ऑफ होम्योपैथी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ऑफ होम्योपैथी. पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा? ये ऑब्वियसली इट विल बी प्रॉब्लम बेस्ड टेस्ट एंड क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी. मतलब आपका जो टैक्ट है, आप कितने अच्छे से केसेस को हैंडल कर पाते हो, कितने अच्छे से क्लिनिकल जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग इनैक्ट कर पाते हो होम्योपैथी को, वो टैक्ट आपका यहाँ पे चेक किया जाएगा. द एग्जिट एग्जाम शैल बी कंडक्टेड ऑर्डिनरीली in the month of February and August every year. February और अगस्त में ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा. एंड कौन से कैंडिडेट इनको दे सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया दैट मिनिमम 9 months की जिसने भी इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली है वो केपेबल है और वो एलिजिबल है टू गिव नेशनल एग्जिट टेस्ट. Now, without qualifying the exit test, no homeopathic graduate shall be eligible to get registered in state या फिर यूनियन टेरिटरी रजिस्टर या फिर नेशनल रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा. मतलब अगर आपने ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया तो आप एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं कहाए जाओगे. आपकी जो डिग्री है उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होगी. मिनिमम 5 attempts shall be given to graduate to qualify the exit examination. So maximum आपके पास 5 attempts available है to get the best out of your degree, which is through qualifying this next examination. Now what will happen if unfortunately a graduate of BHMS fails to qualify national exit test? Now this is the utmost important point जो आपको जानना है, the point that will motivate you to work harder. If a candidate does not clear the examination in 5 attempts तो maximum थे जो आपको दिए जा रहे थे, तो अगर आप 5 attempts में जो ये एग्जाम है नेशनल एग्जिट टेस्ट का इसको क्लियर नहीं करते हो, his graduation be considered for all other job opportunities where medical registration is not mandatory. Now this is the worst that you can think of, that अगर आपने एग्जिट जो टेस्ट है उसे क्लियर नहीं किया तो आपकी जो डिग्री है वो किसी भी मेडिकल रजिस्ट्रेशन वाली अपॉर्चुनिटी जो भी है उसके लिए वैलिड नहीं कही जाएगी. एक्सप्लेनेशन इसका यहाँ पे मेंशन किया गया है दैट अनलाइक ऑल अदर ग्रेजुएशन डिग्री, जैसे नॉर्मल ग्रेजुएशन की डिग्री है वैसी ही कंसिडर की जाएगी होम्योपैथी की भी डिग्री अगर आपने एग्जिट एग्जामिनेशन क्लियर नहीं किया है तो, और वो स्टिपुलेटेड टाइम में और जितने भी अटेम्प्ट्स, दैट इज 5 अटेम्प्ट्स मेंशन किए हैं उनके अंदर. ठीक है. वेयर
these degrees are recognized. So commission के through ही registered medical practitioner की जो डिग्री है या फिर जो क्वालिफिकेशन है वो आपको मिलेगी. Now, passing of national exit examination and get registered in the state register and through state register in national register shall be essential for practicing as registered medical practitioner या फिर कोई भी जॉब जहां पर क्लिनिकल वर्क रिक्वायर्ड है. ठीक है, मतलब अगर आप So if anyone fails to give the national exit examination, तो उसे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर किसी भी तरीके से जो जॉब के लिए क्लिनिकल वर्क जिस भी जॉब में चाहिए होता है वो उसको करने के लिए एलिजिबल नहीं होगा. एंड अनलाइक ऑल अदर ग्रेजुएशन डिग्री आपकी BHMS की डिग्री भी कंसिडर की जाएगी. ठीक है, सो दिस वाज द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम नेक्स्ट. अगर आप अपकमिंग अपडेट्स जानना चाहते हो तो follow Inside Organon and do not forget to press the bell icon. Thank you.